Guys, please write. Center of symmetry, also known as inversion center. Write the definition first. It is a point within the molecule It is the point within the molecule from which any straight line when drawn on one side and extended an equal distance on the other side. Equal distance on the other side will meet identical atoms or groups on both sides. Read this once. Guys, consider this first example. Take this point. As we know, center of symmetry is the point within the molecule. देखिए बड़ा सिंपल है. पहली चीज सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर है तो एक ही होगा, नहीं तो नहीं होगा. एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री इज व्हाट? सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल. दिस इज द सेंटर. अगर यहाँ से वो कह रहा है कि आप एक डायरेक्शन में मूव करो, लेट अस से आपने इधर मूव किया एंड यू फाइंड OH ग्रुप, सो आपको उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर आप OH मिलना चाहिए. मिल रहा है, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, प्रोवाइडेड सब डायरेक्शन में यही होना चाहिए. यू मूव दिस डायरेक्शन, H मिला. इसी के उल्टे डायरेक्शन में आपको H मिल रहा है. सेम मैनर में इधर जाने पर भी मिल रहा है. दैट इज व्हाई दिस सेंटर इज एक्चुअली इन्वर्जन सेंटर. क्लियर है? इसको देख लो, ये सेम मैनर में इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ये देखो आपको सब वही मिल रहा है. ये सारे ग्रुप्स वैसे ही मिलेंगे. आप उठाकर देख लो, कोई भी ग्रुप यहीं से पास करेगा. सो ये हो गया इन्वर्जन सेंटर. ठीक है, कॉपी कर लो एग्जांपल्स.
Done? Have you copied these two examples? Yes, sir. Yes, sir. Now you write a note. A molecule which has center of symmetry, a molecule which possesses center of symmetry will be optically inactive. A chiral will be optically inactive. A chiral. And a molecule which does not have plane of symmetry, a molecule which does not have a plane of symmetry may or may not be optically active. May or may not be optically active. Sir, can you repeat? Yes, I said another note was a molecule which does not have center of symmetry may or may not be optically active. It's very simple. For this optical inactivity, if you have center of symmetry, that is sufficient. But if the molecule does not have center of symmetry, then without checking other elements of symmetry, other two, that is that one is plane of symmetry and another is alternating axis of symmetry. Until and unless you check these two elements of symmetry, you cannot comment on optical activity. I hope you are getting my point. Further, you write another note. Only even membered rings can possibly possess a center of symmetry. If you talk about rings, so possibly. Sir, can you repeat it? What did you say? Sir, can you repeat your statement? Yes, sir. वही statement बोल रहा हूँ. Only even membered rings can possibly have a center of symmetry. देखिए, it's obvious. अगर तुमसे कोई बोल देगा ये ऑड नंबर है, इसमें 5 मेंबर्ड है रिंग, अगर आप इसमें सोचोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल नहीं है. अगर आप देखो, अगर इस डायरेक्शन में जाते हो तो तुम्हें ये यहाँ पर CH2 मिल रहा है, क्या उसके ऑपोजिट यहाँ CH2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसमें नहीं है ना. लेकिन अगर आप इवन जो मेंबर्ड है वो लेते हो तो आपको मिलेगा, उतनी डिस्टेंस पे सिमिलर ग्रुप्स मिलेंगे. अगर आप देख लो, सो यहाँ पॉसिबली आपको इन्वर्जन सेंटर मिल सकता है. ठीक है ना. पॉसिबल इसलिए लिखा है, ग्रुप्स यहाँ पर कुछ और भी लगा सकते हो. इन दैट केस इट विल नॉट हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर. आई होप पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? Yes, sir. चलिए, नाउ नेक्स्ट राइट. ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अब अगर इतना नहीं समझ में आएगा, इट्स ओके. आई विल ट्राई कि आपको सबको क्लियर हो जाए, बट स्टिल इसको लेकर परेशान नहीं होना है. लिखेगा ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. We write this as SN. तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो. An alternating axis of symmetry
an alternating axis of symmetry of order n, an alternating axis of symmetry of order n is an axis passing through a molecule such that when the molecule is rotated, by an angle of 360 by n degree. कितना angle? About this axis and followed by reflection, in a plane perpendicular to the axis. Results in a molecule same as it was in the starting position. Results in a molecule same as it was in the starting position. गाइस एक बार अच्छे से रीड करिएगा. Guys, the structure will be given to you to find whether alternating axis of symmetry is present or not. Consider this example. Structure दिया हुआ है and we have to find whether this is having an alternating axis of symmetry or not. If it has, then what degree? अगर आप देखो इसमें लिखा हुआ है, सॉरी what order, इसमें लिखा हुआ है alternating axis of symmetry of order n. अब आप देखो पहली चीज axis passing through the molecule, तो कंसीडर करते हैं ये एक्सिस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, इसके अबाउट मॉलिक्यूल घुमाते हैं. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है ये पता कर लेते हैं. अभी पहली चीज कितने एंगल से घुमा सकते हैं, तो आप देखोगे कि ये एक्चुअली 4 वर्टाइसेस हैं यहाँ पर. सो ऑफ कोर्स इफ यू रोटेट बाय 90 डिग्री, ये जो एंगल दिस इज 90 डिग्री. किसी का माइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो स्पैमर है एक क्या बेटा? एक स्पैमर है. हाँ
गाइस, सो लेट मी ड्रॉ, ये 90 डिग्री एंगल है, तो एक कॉमन सेंस आपको बोलेगा कि यू हैव टू रोटेट मॉलिक्यूल अबाउट दिस एक्सिस विद 90 डिग्री एंगल, राइट? बिकॉज यहाँ 4 वर्टाइसेस आपको दिख रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लेट अस से दिस एज P, this as Q, this as R, this as S, and if I rotate this molecule with 90 degree angle, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ये तो एक्सिस है, इसको एज सच रहने दे। अभी P यहां पर चला गया, Q यहां पर आ गया, R यहां आ गया, S यहां आ गया, राइट? तो अभी P यहां पर आ गया, तो P के ग्रुप्स यहां डालने पड़ेंगे, HCS3, Q is here, so I'll put CS3 here, H here, ये R हो गया, तो R का ग्रुप ऊपर H है, नीचे CS3 है, फिर S आ गया यहाँ पर, S में CS3 here, H here। आई बिलीव ये सबको क्लियर हो गया, राइट? अब वो कहता है, डेफिनेशन ठीक से पढ़ो, alternating axis of symmetry of order n is an axis passing through a molecule such that when molecule is rotated by an angle of, अभी हमने 90 डिग्री घुमा दिया, about this axis and followed by reflection in a plane perpendicular to axis, यानी ये जो एक्सिस थी इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन आपको चूज करना है। तो फॉर्चुनेटली अगर आप यही प्लेन ले लो, ये परपेंडिकुलर भी है इस एक्सिस के, जो जिसके अबाउट तुमने घुमाया है अभी मॉलिक्यूल को, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है। और अगर आप देखोगे इसके अबाउट रिफ्लेक्शन देखो आप, रिफ्लेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? पूरा मॉलिक्यूल पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब है कि जो, अगर आप इसको इमेजिन करो तो ये ऐसा दिखेगा, जो ग्रुप्स नीचे होंगे वो ऊपर दिखने शुरू हो जाएंगे। CS3 यहाँ दिखेगा, H यहाँ दिखेगा, H यहाँ पर, CS3 यहाँ दिखेगा, CS3 ऊपर दिखा, H नीचे दिखा, H यहाँ दिखा, CS3 दिखा। फिर वो कह रहा है कि जो भी स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन के बाद आएगा that will be same as initial जो मॉलिक्यूल दिया हुआ, right? If this happens, then that axis is considered as an alternating axis of symmetry. ऑर्डर क्या आया उसका, जो हमने अभी लिया एग्जांपल, वो है 360 अपॉन 90। अगर इसके बेसिस n ऑर्डर है और आपको एंगल पता चल जाता है, तो अभी एंगल डिवाइड कर दोगे तो ऑर्डर आ जाएगा। तो ये आ गया 4, इसका मतलब इसको हम मेंशन करेंगे S4। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो सर। लिटिल डिफिकल्ट है, बट अगर आप ध्यान से डेफिनेशन यूज करते हैं एग्जाम्पल में, सो मे बी पॉसिबल ये इजी लगेगा। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था सर, आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो डेफिनेशन के बाद आपने क्या करवाया? इसके बाद बड़ा डेफिनेशन लिखाने के बाद सर। डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ सर। अरे यार, चले बाकी लोग तभी तक कॉपी कर ले। डेफिनेशन मैंने उसके बाद एग्जांपल दिया, सो ये पर्टिकुलर एग्जांपल था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड कि कितने एंगल से घुमाना जरूरी है। एक्सेस चूज कर लिया आपने, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड देन यू ट्राई टू रोटेट द मॉलिक्यूल, एंड इसमें सिंस 4 वर्टाइसेस आर प्रेजेंट, सो वी प्रेफर टू रोटेट मॉलिक्यूल बाय 90 डिग्री, है ना? बाद में 180 भी घुमा सकते थे, बट 90 डिग्री पे आ रहा है तो 90 डिग्री हम पहले घुमाते हैं। 90 डिग्री घुमाया तो P का पोजीशन Q के पास आ जाएगा, ये ऐसा भी, ठीक है ना? उसके बाद ये जो नया स्ट्रक्चर बन गया आपका, उनके ग्रुप्स आप देख लो, सब ऐसे ही समझ में आएगा। फिर वो कह रहा है डेफिनेशन में, आफ्टर रोटेशन टेक द रिफ्लेक्शन अबाउट अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये आपके एक्सिस थी, इसके अबाउट परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो ये मैंने कंसीडर कर लिया। इसके अबाउट रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसको बस पलट देना, आप उल्टा करके देख लो। तो जैसे ही आप पलट दोगे तो जो CS3 नीचे दिख रहा था वो ऊपर हो जाएगा, H नीचे आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि ये पहले जैसा मैच करना चाहिए, एंड इट्स मैचिंग।
That is why this axis is considered as alternating axis of symmetry. And what order? So 360 upon 90, that is 4. तो ये order 4 हो गया. Okay, sir. Thank you. Now you write a note. Yes, sir. देखिएगा, molecules that have an alternating axis of symmetry, molecules that have an alternating axis of symmetry are achiral and optically inactive. Guys, if you see this particular structure, इसमें basically you can see plane of symmetry भी तुम्हें नजर आएगी. अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसके अबाउट ये ध्यान से देखो, ये वाला प्लेन, मतलब ये जो डायगोनल वाला प्लेन है ये वाला, इसके अबाउट देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखो H और H मिरर इमेज की तरह दिख रहे हैं, ये CS3 ये CS3 है ना. सिमिलरली एक प्लेन यहाँ से पास करता हुआ भी ले सकता है ऐसे. तो इसके ये अगर प्लेन हो गया तो ये CS3 और ये CS3, ये दोनों CS3 देखोगे, ये वाला और एक ये वाला, ये मिरर इमेजेस का काम करेंगे, HH मिरर इमेजेस का काम करेंगे. So this particular molecule, this one is also having plane of symmetry. तो ये भी आप फटाफट देख लेना, इसको भी लिख लेना कि the above structure also has two vertical plane of symmetry. ऐसा भी करके लिख सकते हो, diagonal, vertical जो diagonal plane of symmetry. गाइस एक और एग्जांपल है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एटलीस्ट आप ड्रॉ करके इसको रखना. इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट फिर भी लेट मी ड्रॉ. कंपाउंड का नाम भी चाहिए तो लिख देते हैं. गाइस ये स्ट्रक्चर ऐसा है which is only alternating axis symmetry, only alternating axis symmetry, no plane of symmetry, no point of symmetry. गाइस एक और पॉइंट,
इसका जो ये प्लेन ऑफ ऑल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री दैट इज ऑफ ऑर्डर 4, तो ये 4 फोल्ड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री है। मतलब 90 डिग्री घुमाने के बाद ये जो वट एवर स्ट्रक्चर यू विल गेट उसका रिफ्लेक्शन विल बी दिस वन, ये रिपीट होगा जब इसको 90 डिग्री घुमाओगे। और एक्सिस कौन सी वो भी मैं दिखा देता हूं, ये जो नाइट्रोजन से पास कर रही है। गाइस इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, इट्स लाइक कि परपेंडिकुलर रिंग्स है ना। ये दो ऐसे परपेंडिकुलर रिंग्स हैं और ये कॉमन सेंटर इज नाइट्रोजन। सो इफ यू रोटेट विद 90 डिग्री, आप इसको 90 डिग्री घुमा दो, इसको भी 90 डिग्री घुमा दो, एंड देन यू टेक रिफ्लेक्शन, तो आप विजुलाइज कर पाओगे कि आपको पहले जैसा मिल जाएगा। ये ऐसा है और इसको 90 डिग्री घुमाया और इसका रिफ्लेक्शन लिया, तो रिफ्लेक्शन लेने पे बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, ये ऐसा हो गया। तो स्टार्टिंग में जो आपने चूज किया था वही मिल रहा है रिफ्लेक्शन के बाद। दैट इज वाई इसको हम बोलेंगे 4 फोल्ड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई बिलीव थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा, बट यू कॉपी दिस। सर आप पिछला एग्जांपल लाइक ब्रीफ में 1 मिनट में रिपीट कर सकते हो, क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम तक डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बोला बेटा आपने? सर आप पिछला एग्जांपल ब्रीफ में 1 मिनट में रिपीट कर सकते हो, क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम तक डिस्कनेक्ट हो गया था। वो बेटा मैंने 2 बार ऑलरेडी बता दिया है, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग ये भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है ओके सर। सर इसमें मिथाइल ऑल्टरनेटिवली वेज और डैश से जुड़ा है। मिथाइल किससे जुड़ा है? वेज और डैश से। वेज एंड डैश का कोई वो नहीं, आप ड्रॉ करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, कंसीडर कर लें प्लेन को, अगर वो जो रिंग है वो प्लेन में कर सकते हैं ऐसा। डन, कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. Guys, these were the three elements of symmetry. On the basis of these elements of symmetry, we can predict whether the molecule is optically active or inactive. एक और सिमेट्री है यहाँ पर, उसको भी स्टडी कर लेते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नहीं पड़ेगी, है ना। तो लेट मी राइट दी हेडिंग हियर, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री डालकर रखिएगा, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको CN करके रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन लिखिएगा, when a molecule is rotated, when a molecule is rotated around an imaginary axis, when a molecule is rotated around an imaginary axis passing through the center of the molecule by an angle, इसमें भी रोटेशन का जो एंगल होगा वो 360 divided by n, by an angle of 360 degree by n, produces original arrangement, then we say molecule has n-fold axis of symmetry. N-fold axis of symmetry.
guys, although we are not going to predict optical activity on the basis of this simple axis of symmetry, since we are dealing with different elements of symmetries, we are discussing this simple axis of symmetry. Let me take an example. ये अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें जब सॉलिड स्टेट चैप्टर आएगा ना तो आपको ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ाएंगे. तो कंसीडर कर लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं, है ना. लेट मी टेक दिस क्यूब. एट कॉर्नर्स यहां पर दिख रहे हैं, 12 एजेस हैं, 12 साइड्स हैं, 6 फेसेस हैं यहाँ पर. ठीक है. सिंपल एक्सिस सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि एक्सिस चूज करते हैं, लाइक ये चूज कर लेते हैं, इससे पास करता हुआ. तो कॉमन सेंस कहता है कि सिंस ये अगर कोई भी एक नीचे का पार्ट लेटर से ले लेते हैं तो 90 डिग्री घुमाने पे ये वर्टेक्स चेंज हो जाएंगे, है ना. तो वी विल ट्राई टू रोटेट दिस विद 90 डिग्री. तो 90 डिग्री होने पे क्या होगा, ये जो फेस है वो इधर चला जाएगा, ये फेस होते नहीं वापस ये क्यूब मिल जाएगा. इसका मतलब है कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक्चुअली में C4 निकला, है ना, क्योंकि 90 डिग्री घुमाएगा तो 360 by 90 इज हाउ मच, 4. तो ये हो जाएगा C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है. सिमिलरली इफ आई टेक अनदर केस, अगेन आई विल ड्रॉ क्यूब. तो क्यूब में डेफिनेटली 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. लेट्स सी कोई और भी है क्या इसमें. तो जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूं आपको कि ये एक्सिस आप चूज कर लो, तो बता सकते हो ये कौन कितने व्हाट फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज दिस? जस्ट गेस. ये तो अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो. जस्ट लाइक 2 फोल्ड, 4 फोल्ड, 3 फोल्ड, व्हाटएवर यू वांट. चलिए डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं मेरे को. अक्षत 2, हर्ष 4, आहान 3, आदित्य 2 फोल्ड, हर्षिका 2, स्पंदन 4, कशिश 2, सर्वज्ञ 4, गौतम 8, विशाल 2 फोल्ड, सिद्धार्थ 2 फोल्ड, अमान 6 फोल्ड. इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आप, जैसे ऐसी कोई और भी ज्वाइन कर गया. चलिए लेट्स सी गाइस, ये थोड़ा सा इट्स लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज डेफिनेशन सेज कि आफ्टर द रोटेशन यू शुड गेट द सेम अरेंजमेंट. मतलब जो पहले था वही मिल जाना चाहिए था. देखिए ये वाला ज्यादा आसान है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसके पहले जो हमने लर्न किया अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन भी लेना पड़ता है. इसमें कुछ नहीं, केवल घुमाया. अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, है ना, तो ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, बिलीव मी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके पास C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो. मतलब 360 घूमने के बाद तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, अदरवाइज वो मैजिक हो जाएगा कि पूरा 360 घुमा दिया फिर भी वो आइडेंटिकल नहीं मिला. तो C1 जो है वो सब में आपको मिलेगा. सो वी डू नॉट कंसीडर C1 एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स इनको ज्वाइन कर दो. ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया. तो ऑफ कोर्स ये जो एक्सिस थी ये इस ट्रायंगल से भी पास करेगी.
So when you say molecule is rotated about the axis, actually it is triangle which is rotating about this axis, right? So what we say कि अगर एंगल घुमा रहे हो तो कितने एंगल घूमने के बाद, लेट अस से ये P है, ये Q है, ये R है, P Q के पास आएगा, Q R के पास और R P के पास. सो आंसर इज वेरी सिंपल. ये आंसर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. 120 डिग्री घुमाओगे तो ये P Q के पास आ जाएगा और Q R के पास चला जाएगा. और 120 का मतलब क्या हो गया? 360 अपॉन 120, मतलब ये हो गया 3 फोल्ड. I hope this point is clear. Any confusion here? No. 3 फोल्ड है. तो किसी ने 3 फोल्ड बोला था क्या? अमान ने 3 फोल्ड बोल दिया था, बाद में चेंज कर दिया आंसर. और किसने? आहान ने 3 फोल्ड बोला था, बाकी किसी ने भी नहीं बोला. Guys, इसी क्यूब में if I take this क्यूब वापस मैं ड्रॉ कर देता हूं. अभी मान लीजिए आपने ऐसी एक्सिस चूज की, वो क्या थी? डायगनली अपोजिट जो कॉर्नर्स हैं उनसे. अभी डायगनली अपोजिट जो साइड्स हैं उनसे पास करती हुई एक एक्सिस चूज कर ली मैंने, ये वाली. कैन यू टेल मी ये कितने फोल्ड एक्सिस सिमेट्री है? चलिए, कई लोगों ने आंसर दे दिए. Guys, it's very simple. अभी to understand this कि कितने फोल्ड एक्सिस सिमेट्री है, मॉलिक्यूल को घुमाना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसको ऐसे एक ये एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं. अब मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, मतलब ये प्लेन घूम रहा होगा. तो अब ये प्लेन वापस ऐसे ही कब दिखेगा? जब ये प्लेन पूरा पलट जाएगा. तो कितने डिग्री पर घूमने पर ये पलट जाएगा? आंसर इज 180 डिग्री घूमने पर पलट जाएगा. सो कितने फोल्ड एक्सिस सिमेट्री हो गए? 360 अपॉन 180, दैट इज C2. 2 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री होगी, है ना. तो ये क्यूब के रिस्पेक्ट में मैंने एग्जांपल ले लिया. अभी अगर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सर आप ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या बेटा? सर आप ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्यूब वाला? क्यों? नहीं समझ में आया सर. डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ था? नहीं सर. चलिए, हाँ, ये मैंने ये जो एक्सिस चूज किए है, वी हैव टू रोटेट द मॉलिक्यूल अबाउट दिस एक्सिस. अब इतना आसानी से समझ में ऐसे नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायगनली ये जो साइड्स हैं बेसिकली इनको ही कनेक्ट कर देंगे, इनके कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दिया, तो ये बेसिकली हमको एक प्लेन मिल गया, राइट. तो ये प्लेन अगर आप देखेंगे तो इसको आपको करना क्या है, ये सीधे ऐसे प्लेन है ऐसे, और एक्सिस ये जा रही है, तो जस्ट रोटेट मॉलिक्यूल, मतलब रोटेट दिस वन, तो ये पूरा ऐसे घूम गया. तो ये ऐसा से ऐसा कभी होगा? 180 डिग्री घूमने के बाद आपको आइडेंटिकल मिल रहा है. सो यू आर गेटिंग द सेम स्ट्रक्चर आफ्टर रोटेटिंग मॉलिक्यूल बाय 180 डिग्री. सो वो एक्सिस कौन सी हो गई? 2 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री. अभी समझ में आया क्या? हाँ सर, थैंक यू. गाइस, ये एग्जांपल चूज कर लेते हैं. तो ये स्ट्रक्चर लेटर से दिया हुआ है. सो हम लोग को पता करना है कि इसमें कौन सी, जैसे क्यूब में आपको अलग अलग टाइप जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री थी वो प्रेजेंट थी. ये नहीं होना चाहिए कि इसी में तुमने बोल दिया कि यही वाली C1 भी और यही वाली C2 है. मिनिमम एंगल के बेसिस पे होता है. हाँ,
तो इसको C2 ही नाम देंगे, राइट। तो जैसे C4 है, ऐसा नहीं होता है तुम उसको बोलोगे कि तो 180 पे भी आपको सेम दे देगा, 180 पे भी दे देगा, तो सेम एक्सिस आपका C4 भी होगा और C2 भी होगा। नो नो, जैसे C4 एक्सिस सिमेट्री उसको। वैसे ही यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या, ये टेट्राहेड्रल है, राइट। तो टेट्राहेड्रल है, ये बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो ये टेट्राहेड्रल इस तरह से है। ये नीचे का जो कनेक्टिविटी दिखा है ये ट्राइंगल के फॉर्म में है, और ये Cl, ये वाला Cl यहाँ कब आएगा, व्हेन यू रोटेट मॉलिक्यूल बाय 120 डिग्री। तो जब 120 घुमाओगे इसके अबाउट, तो ये होगा तुम्हारा C3 एक्सिस ऑफ, समझे ना, C3 एक्सिस में। तो ये इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जस्ट कॉपी। ये चेंज कर दें। हाँ सर। Guys, if you want, you can take another example. यहीं पर जैसे यहाँ H डाल देते हैं, इधर ले लेते हैं HBr ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं BRH, है ना। तो अगर मैं एक्सेस जो चूज कर रहा हूं वो ये एक्सेस चूज कर रहा हूं, इसके अबाउट जस्ट आपने पलट देना है। तो ये वाला हिस्सा इसके यहाँ आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो Br ऊपर जाएगा और ये Br नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये H अगर सेम नहीं होता तो ये फिर नहीं होगा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट यहाँ हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स दिस इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्चुअली में है ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन। डन। यस सर। गाइस यहीं पर एक दो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिख लो, ऑल्दो उतनी जरूरत नहीं है उसकी। लिखिएगा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, molecules which do not possess any element of symmetry, molecules which do not have any element of symmetry. As I told you, C1 किसी के साथ भी होगा तो C1 is not considered.
फिर यहीं पर लिखिएगा asymmetric molecules. Molecules which do not have alternating acts of symmetry, plane of symmetry, point of symmetry. Sir, can you repeat? Molecules which do not have alternating acts of symmetry, plane of symmetry, point of symmetry, may or may not have simple axis of symmetry, may or may not have simple axis of symmetry. May or may not have simple axis of symmetry. लिखिएगा non-dissymmetric molecules. Non-dissymmetric molecules. Molecules which have either a plane of symmetry, a center of symmetry, or an alternating axis of symmetry. Are non-dissymmetric molecules. Non-dissymmetric molecules. Guys, important thing is पहली चीज asymmetric molecules, तो इनको बोलेंगे yes they are chiral, optically active, right? Dissymmetric molecules के लिए yes molecules are chiral and exhibit enantiomerism. अच्छा, enantiomerism exhibit करने का मतलब है optically active. हाँ, अगर किसी मॉलिक्यूल के बारे में ऐसा लिख दिया जाए exhibits enantiomerism, it means molecule is optically active. और जो लास्ट वाला तुमने लिखा है नॉन डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, तो उनमें लिख देना है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव. सर एसिमेट्रिक कायरल मॉलिक्यूल जो है ना, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल से तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा. हाँ ठीक है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स भी ऑप्टिकली एक्टिव है. अच्छा, एक और चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, या ऐसा बोल सकते हो ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर डिसिमेट्रिक बट ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर नॉट एसिमेट्रिक. थोड़ा कंफ्यूजन वाला है बट अगर ध्यान से सोचोगे तो हो जाएगा. all definition use करना, all asymmetric molecules are dissymmetric but all dissymmetric molecules are not asymmetric. समझ में आया क्या मैंने स्टेटमेंट जो बोला? तो उल्टा होगा ना? उल्टा बोला है क्या मैंने? दोबारा हाँ सोचो. सर, उल्टा होगा. मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, all asymmetric molecules are dissymmetric but all dissymmetric molecules are not asymmetric. हाँ, इसका कितने लोग,
दोज हु एग्री यस लिख दे और दोज हु डिसएग्री नो लिख दे. I repeat my statement. All asymmetric molecules are dissymmetric, but all dissymmetric molecules are not asymmetric. या अक्षत ने गुस्से में लिख दिया डिसएग्री. गौतम ने लिखा है ट्रू. विशाल सेज ट्रू. सर्वज्ञ सेज ट्रू. हर्षिका नो. सानिका यस. हर्ष नो. स्पंदन सेज ट्रू. तुम लोग को इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा या डेफिनेशन नहीं आप चेक कर पा रहे हो. एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में लिखा है मॉलिक्यूल्स which do not have any element of symmetry. और डिसिमेट्रिक में लिखा है मॉलिक्यूल्स which do not have वो तीन और may not have simple axis of symmetry. राइट. तो अगर सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ तो भी वो डिसिमेट्रिक हो जाएगा. यानी एसिमेट्रिक वाला तो डिसिमेट्रिक हो गया. राइट. लेकिन एसिमेट्रिक वाले में लिखा हुआ है do not have any element of symmetry. Any element of symmetry. एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए. समझे ना. तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है एसिमेट्रिक में तो वो तो डिसिमेट्रिक में चला गया. लेकिन अगर डिसिमेट्रिक वाला वो एग्जांपल ले लिया जिसमें ऑल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री है तो एसिमेट्रिक उसको नहीं बोल पाओगे ना. क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया तो डिसिमेट्रिक तो हो सकता है बट एसिमेट्रिक तो नहीं होगा ना. राइट. तो माय स्टेटमेंट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. यू राइट दैट स्टेटमेंट. अच्छे से हाईलाइट करना. गाइस कैन यू गेस इसमें ये इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे. व्हाट इज द बेस्ट कैटेगरी फॉर दिस. नॉन डिसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक. नॉन डिसिमेट्रिक. क्या बेटा. नॉन डिसिमेट्रिक. नॉन डिसिमेट्रिक. नॉन डिसिमेट्रिक का मतलब हो गया इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तीन में से एक इसके अंदर जरूर होना चाहिए एटलीस्ट.
सर सिमेट्रिक है ना? क्या बेटा? डिसिमेट्रिक। वेरी गुड। सब लोग अपना आंसर लिख दो भाई, चैट बॉक्स में सब लोग अपना आंसर लिख दो। बहुत सारे लोगों ने आंसर लिख दिया। चल, वेरी गुड गाइस। इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नो सेंटर ऑफ सिमेट्री and no plane of symmetry। लेकिन C2 एक्सिस सिमेट्री है। C2 एक्सिस सिमेट्री, ये जो सेंटर है इसके अबाउट जब घुमाते हैं मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के एंगल, तब आपको मिलता है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर आ गया और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एक्चुअली टार्टरिक एसिड का एग्जांपल है। टार्टरिक एसिड का एग्जांपल है और ये प्लस माइनस वाले एग्जांपल है, मतलब इधर पॉजिटिव रोटेशन और नेगेटिव रोटेशन, राइट। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो नॉन डिसिमेट्रिक तो होगा ही नहीं, बट C2 एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट है, इसीलिए इसको एसिमेट्रिक बोलने के बदले इट इज बेटर टू से डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, इसको आप कॉपी करके रखिएगा, राइट। ये दिया हो या फिर इसका मिरर इमेज दिया हो, मिरर इमेज भी आप सोच पाएंगे, ठीक है। इसको फटाफट कॉपी कर लो। Have you copied this? Yes, sir. Guys, if you recall, once I told you that presence of chiral carbon is not a necessary condition for a molecule to be optically active, right?
So we need those examples by which we can say, yes, these are the examples where even chiral centers are not present. Still, the molecule is optically active, chiral. तो वो examples एक बार हम लोग सब लोग लिख लेते हैं, ठीक है? तो लिखिएगा, एक छोटा सा नोट लिख दीजिएगा यहाँ पर आगे. We know the presence of chiral center. We know that presence of chiral center is neither a sufficient condition nor a necessary condition. For a molecule to be optically active, that is chiral. For a molecule to be optically active, that is chiral. Sir, can you repeat after nor? Neither a necessary nor a sufficient condition for a molecule to be optically active, that is chiral. Necessary and sufficient condition is necessary and sufficient condition is molecule should be non-superimposable on its mirror image. Necessary and sufficient condition is molecule should be non-superimposable on its mirror image. Guys, now we'll talk about those examples where we do not have chiral centers, but the molecule is optically active. तो एक तो एग्जाम्पल जो हम लोगों ने, इफ यू रिकॉल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पर बाइफिनाइल्स वाला केस उठाया था कि वैसे तो ये जो है सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन अलाउड है, फ्री रोटेशन है, बट इफ यू अटैच बल्की ग्रुप्स, लाइक यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया, इधर मैंने कोई दूसरा बल्की ग्रुप लगा दिया, लेट अस से आपने COOH लगा दिया, है ना, इधर COH लगा दिया, इधर NO2 लगा दिया, तो ये इसका जो रोटेशन वो हिंडर्ड हो जाता है, बोथ द रिंग्स विल बी नाउ परपेंडिकुलर, राइट? तो ये जो अब होगा, अब ये जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज विल नॉट बी सुपर इम्पोजेबल तो ऑन दिस मॉलिक्यूल, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वाला केस हो गया, तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव. तो ये भी ड्रॉ करके रखिएगा. इसको कैसे भी करके दिखा सकते हैं, परपेंडिकुलर दिखाने के लिए ये हिस्सा इधर दिखाया, ऐसे दिखा दिया, है ना. तो अभी जब इसका मिरर इमेज बना दोगे तो वो बदल जाएगा, मतलब ये ऐसा दिखेगा. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. इसी तरह इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एलीन वाला एग्जाम्पल, राइट? एलीन. यस सर. हाँ, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं था, उल्टा ये जो बेसिकली जो दो बॉन्ड्स थे, जैसे मैं इधर अगर ड्रॉ कर दूं HN, लेटर से यहाँ लिख देते हैं CS3, है ना.
और इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लेटस एच ले लेता हूँ इधर, और ये क्योंकि अलग प्लेन में दिखाना था इसको ना, तो ये इतना हिस्सा एक प्लेन में दिखा दिया, ठीक है, और ये दूसरे प्लेन में दिखाया, दो जो है अलग अलग, तो इसको ऐसा दिखा दिया। इसका भी आप मिरर इमेज ड्रॉ कर दोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो इन सब का एक ही एक्सप्लेनेशन है, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज, ठीक है ना, नो काइरल कार्बन बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज, ऐसा करके लिख लो इसको। इसी तरह के एग्जाम्पल में एक डाल सकते हैं, CH3H, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर रिंग उठा लिया हमने, तो रिंग इज एक्टिंग लाइक अ डबल बॉन्ड हियर, H ले लिया, CH3 ले लिया, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्पाइरो वाले एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, वो भी इसी में फॉल कर जाएंगे, इस टाइप ऑफ ये। तो ये बेसिकली चाहिए तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए, ये टोकन वेज दिखा दीजिए, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर H ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, ये स्पाइरो की, ये बेसिकली ये जितने एग्जांपल्स मैं अभी लिख रहा हूँ, इट्स बेटर कि आप इसको याद रखें रादर देन इसमें बहुत दिमाग लगा दें, इनको याद रखें ऐसे एग्जांपल्स जो है। तो बट याद रखना ये अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, हाँ, ये नहीं कि यहाँ पर तुमने HH लगा दिया, यहाँ भी HH लगा दिया, इन दैट केस इट विल नॉट। तो स्पाइरो वाला क्यों नहीं होगा? क्या बड़ा? मैं स्पाइरो वाला एग्जांपल नहीं समझा। मैंने बोला ना, ये एग्जाम्पल जितने भी हैं इनमें कायरल कार्बन आपको नहीं देखना है, इसमें देखना है नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज। तो जब मिरर इमेज बनाओगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, सीधे सीधे उठाकर रखोगे तो ये वाला हिस्सा जो है, क्योंकि आप जैसी जो मिरर इमेज होगा उसमें जो यहाँ वाला दिख रहा है वो एकदम लास्ट में जाकर दिखेगा, और उठाकर रखोगे तो वो सुपर इम्पोज इनके ऊपर नहीं करेगा। ओके सब सर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस वाले एग्जाम्पल, ये इरेज कर दें। हाँ सर। ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं, हार्डली 6-7 एग्जाम्पल्स हैं। एक साइक्लोऑक्टीन हमने स्टडी किया था, ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, इफ यू रिकॉल, डबल बॉन्ड इन द रिंग वाले एग्जाम्पल्स हमने चूज किए थे। डबल बॉन्ड इन द रिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से स्टार्ट होता था? जब भी आपका 8 जो मेंबर्स होते थे रिंग में, 8, तो वहां से ट्रांस बनना शुरू होता था, ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। बट इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, राइट? ये वो एग्जाम्पल है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो अगर मैं इधर प्लेन थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाऊं तो लेट मी ड्रॉ दिस, और इसका जब मिरर इमेज आप ड्रॉ कर दोगे दिस इज अनदर एग्जांपल।
गाइस ये फ्यू एग्जांपल्स स्टैंडर्ड से हैं, आप इसको लिख लो, बाकी इसमें ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। सर हेक्साहेलिसिलिन का मिरर इमेज उस पे सुपर इम्पोजिबल क्यों नहीं होगा? मतलब सेम डाउट। हेक्सा हेलिसिलिन का मिरर इमेज उस पे सुपर इम्पोजिबल क्यों नहीं होगा? लाइक वो थोड़ा प्लेन अलग अलग हो जाएगा बेटा, प्लेन अलग अलग हो जाएगा। अच्छा ओके। इन सब में हाइड्रोजन एटम्स भी एक्चुअली आप चाहो तो उसको ड्रॉ कर सकते हो, वो सब, और मतलब एक्चुअली में तो सब कुछ हमको दिखाना चाहिए था, बट उसकी जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं, आपको उतना समझ में इस तरह से आता नहीं है। बट ये अपने को पता चल जाता है कि जैसे ये अगर आप मिरर इमेज बनाओगे ना, तो इसका जो डायग्राम आएगा उसमें ये हाइड्रोजन एटम्स कहीं और दिखेंगे आप, फिर जब आप इनके ऊपर सुपर इम्पोज कराओगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो ये एक वर्टेक्स है, इसका इसका हाइड्रोजन यहाँ ऐसा आता है, ये तो रिंग है इस बेंजीन का, बट ये हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पर है। Should I erase this? Yes sir. चलिए, तो ये these are the examples। अब यहाँ पर if you recall हम लोगों ने स्टार्टिंग से बोल रखा है कि we'll study method resolution। देखिएगा, सर आप एक बार स्लाइड पीछे कर सकते हो? सर लास्ट एग्जांपल में एक कायरल कार्बन है ना? कायरल कार्बन नहीं, COOH से जो कड़ा है, सॉरी नहीं, बेंजीन रिंग है ये। डबल बॉन्ड है। ठीक है, चल रेजोल्यूशन प्रोसेस लिखिएगा, इट इज द सेपरेशन ऑफ, it is a method by which we separate, it is a method by which we separate racemic mixture into pure dextro or pure levo। गाइस ये वैसे तो एल्डिहाइड है, बट इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन,
ये कोई भी आप चूज कर सकते हैं। लेट अस से इसका आपने ट्रीटमेंट करा दिया HCN के साथ, राइट? तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, बेसिकली CN विल गेट कनेक्टेड, तो ये ऐसा बन जाता है CH3H C, ये OH बन जाएगा, ये CN यहाँ लग जाएगा, राइट? अब आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली एकाइरल है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन इसको देखो ये कायरल है। अभी अभी कायरल बना, अभी अभी अगर कायरल बना तो हमें कैसे पता चलेगा ये डेक्स्ट्रो है कि लेवो है? आंसर है दोनों बनेंगे, दोनों बनेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली बनता है प्लस माइनस, राइट? यानी कि डेक्स्ट्रो एंड लेवो दोनों मिल रहे हैं आप। तो आप लिखिएगा एक छोटा सा नोट, इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस एग्जांपल। देखिएगा, रेजोल्यूशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल, ऐसा लिख सकते हैं। रेजोल्यूशन मेथड इज वेरी यूजफुल in above type of reactions. Above type of reactions where a chiral compound is produced, a chiral compound is produced by the reaction of, a chiral compound is produced by the reaction of an achiral compound with achiral reagent. Guys, consider ये एक एग्जांपल चूज करते, लेट अस से RC डबल बॉन्ड OH, ये लेट अस से कायरल है, R वाला पार्ट कायरल है, ठीक है? तो इसको मैं लेता हूं D and L बोथ, राइट? इसकी रिएक्शन करा देते हैं एक एल्कोहल के साथ। फ्यूचर के लिए आप याद रखना, ये रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है, एसिड प्लस एल्कोहल, और हो सकता है 10th में आपने फ्रूटी स्मेल करके पढ़ा हो, एसिड प्लस एल्कोहल गिविंग एस्टर। याद है ऐसा कुछ? हाँ सर। तो मान लीजिए कि एक एसिड आपने लिया जो कायरल है और उसकी रिएक्शन तुमने R-OH से करा दिया एल्कोहल से, विच इज ऑल्सो कायरल, बट तुमने इसका केवल डेक्स्ट्रो लिया है। तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा? RC डबल बॉन्ड OR- और प्लस H2, है ना? तो ये बेसिकली रिएक्शन ऐसी होती है, यहाँ से OH और यहाँ वाला H ऐसे निकल जाता है, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो है ना, इसका D और L दोनों था, इसका केवल D था। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? इसका D, उसका D,
एक तो ये कॉम्बिनेशन, एक ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, इधर से L चूज किया लेकिन इसके पास तो केवल D था. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट्स. और अगर ये दिख रहा है तुमको, एक DD और एक LD दिख रहा है, इसका मतलब ये इनेंशियोमर्स नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, इनको आप डायस्टेरियोमर्स बोलोगे. डायस्टेरियोमर्स. एंड डायस्टेरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड विद फिजिकल मीन्स. अगर आप रिकॉल करो, बाय फिजिकल मीन्स डायस्टेरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड. Conclusion is, initially we failed to separate this racemic mixture into pure dextro and pure levo. लेकिन जब इसका रिएक्शन हमने करा करके उसको डायस्टेरियोमर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो these can be separated. अब इनमें से आप वापस ले आओ प्योर डेक्स्ट्रो या प्योर लेवो वाला, राइट. तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया. इसमें हमने क्या किया कि रेसमिक मिक्सचर जो था, जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे थे बॉइल करके, रिक्रिस्टलाइजेशन करके, उनको हमने किसी रिएक्शन के थ्रू डायस्टेरियोमर्स में कन्वर्ट कर दिया. डायस्टेरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. सेपरेशन हो गया. ये बेसिकली अ काइंड ऑफ रेजोल्यूशन हमने यहाँ पर यूज कर लिया. इसको फटाफट कॉपी करो. अब ये क्वेश्चंस करोगे ना तो इसका आइडिया लगेगा, तो इतना कंफ्यूज मत होना इसको लेकर के. जस्ट मैंने एग्जांपल्स का ही यहाँ उठा लिया मैंने, तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा. एस्टर के दो फॉर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं. एस्टर्स के दो फॉर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते. इसको हमको कोई लेना देना नहीं है एस्टर्स के दो फॉर्म सेपरेट करने का. लेकिन जो दो मिले वो उनमें क्या था, ये हिस्सा डेक्स्ट्रो, इधर वाला लेवो था. एक में एक सॉरी डेक्स्ट्रो था, और दूसरा जो प्लस मिला कंपाउंड, की दो एस्टर्स मिल रहे हैं यहाँ पर. एक डेक्स्ट्रो वाला कॉम्बिनेशन, एक लेवो डेक्स्ट्रो वाला, वो आपस में डायस्टेरियोमर्स है. दे कैन बी सेपरेटेड. तो इट्स नॉट कि दो एस्टर सेपरेट कर रहे हैं, हम डायस्टेरियोमर्स को सेपरेट कर रहे हैं बाय फिजिकल मेथड्स. हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के डी एंड एल को फिर कैसे करेंगे सेपरेट? इधर तो एस्टर के डायस्टेरियोमर्स को किया है सेपरेट. अच्छा, तुम कह रहे हो कि हमको एस्टर, तो वही तुम्हें बोल रहा हूँ. इसको अगर आप फर्दर जब तुम एसिड और एल्कोहल में कन्वर्ट करोगे दूसरे मेथड से, हाइड्रोलिसिस से, देन यू विल गेट प्योर डेक्स्ट्रो. ये वाला आप जब हाइड्रोलिसिस करके वापस एसिड बनाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट प्योर लेवो वाला एसिड. सेपरेशन होगा. Done? Yes, sir. Guys, 99% we have completed this optical isomerism. एक दो चीजें हैं जैसे नॉमेनक्लेचर हो गया, थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल्स का कुछ पार्ट है, एरिथ्रो, थ्रियो आइसोमर्स, एपीमर्स, ये थोड़ा बहुत ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ वो बुकलेट का प्रॉब्लम्स वो डिस्कशन कर लेंगे. बुकलेट आप पूरा अटेम्प्ट कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. एंड एट द सेम टाइम नेक्स्ट लेक्चर में अगर टाइम मिलेगा तो विल डिस्कस फ्यू गुड क्वेश्चंस. और बुकलेट लेकिन आप फिनिश कर लेना, ठीक है? Okay, sir. Okay. बाय. Thank you, sir. थैंक यू सर. बाय सर. बाय.